So very good evening to you, all of you. This is Kokila God on behalf of Quality Council of India. I would like to welcome you to this webinar on the topic Holistic Cleanliness and Well-being. We are pleased to announce that QCI is celebrating Swachhata Pakhwada from 1st to 15th November. So we are organizing series of webinar. So we already had 2 webinar from last week. Now this is the last one of this series. We have with us Dr. Atul Mohan Kochar, CEO, NABH, and our guest speaker, Dr. Mohit Dayal Gupta. He is from GB Pant Hospital. So I'm requesting Kochar sir to please start the session and welcome Mr. Gupta also. Thank you so much. Thank you, madam. Good evening, all. Thank you, Dr. Mohit, for joining it at very short notice. Just to give a very brief background, we all know that on 2nd of October 2014, our Honorable Prime Minister, he gave a clarion call for something which had never been said before, never been attempted before, a very ambitious plan regarding Swachh Bharat mission. The Swachh Bharat is a humongous task, we realize, because we realize that we are, after all, a developing country. But all our traditions, all our heritage is rooted around a basic fundamental of cleanliness. Everything, our traditional practices, whether to take our shoes, leave shoes outside, which most of us don't follow. Um, every part of our daily life is ingrained with techniques and processes which highlight cleanliness. And since 2016, we have been involved in Swachhata Pakhwada, intense gearing up of a fortnight towards Swachh Bharat mission. So we realize that we do this automatically sometimes in our offices. We weed out the unnecessary documents. We take care of our homes also near Diwali. I mean, that's a tradition with us. But then I'm very thankful to CEO NBQP and Kokla Madam when they said, and can we have a slot? So what started off as a slot, and I must compliment Dr. Mohit Gupta because he immediately agreed to this very short notice request to come and address us, but not only about the literal swachhta, but about a holistic cleanliness and well-being. Uh, Dr. Mohit Gupta needs no introduction, but for all those who are not familiar, he is one of the leading cardiologists of Delhi and India. He is the director professor of cardiology. He is the medical superintendent cardiac sciences of GB Pant Hospital. He teaches, he administers, and he's a good person overall. And Mohit is a Dr. Mohit is a very well sought after speaker, not only nationally but internationally also. He's spoken at so many forums, and he practices what he preaches. He's a enthusiastic of fitness at every level, and he practices all the techniques and processes which we outline towards a holistic lifestyle in all. Dr. Mohit, I'm very fortunate that I have this opportunity to introduce you, and we are eagerly looking forward to this very short short guidance from you today. And I hope we get to listen to you at a larger forum also with lots of question and answers coming in. And today, if possible, we'll accept few question answers if somebody pushes it in the chat box. I realize we have just 1 hour for this activity today, but warm welcome on behalf of Quality Council of India, a warm welcome on behalf of NBQP and NABH, and thank you once again for joining at a very short notice for this. And I'm sure your guidance, your discussion, your talk will go a long way in how we conduct ourselves and how we treat our life and surroundings. Thank you so much once again. Over to you, Dr. Mohit.
Thank you, Dr. Atul. Thank you, NBS. Thank you, QCI. It's always difficult to refuse you. Actually, impossible to refuse you. So it's such a great friendship, and such a beautiful relation that we all share. So when Dr. Atul called me, so I just smiled. My parents were sitting, and I thought that's such a great opportunity to connect with my dear friend and so many other people. So what I'm going to talk to you in next 40 to 50 minutes is not something that is about very focused about cleanliness and only that thing, but I'm going to take you on a very inner, very beautiful reflective journey. एक बहुत सुंदर यात्रा पर मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा. And this is such a beautiful journey because I have personally lived this particular life. I have learned that the to actually be truly clean is not just about the outer cleanliness, but what is there inside us. कहते हैं ना कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है. ये तो हम कॉमनली सुनते हैं जब हम लगा कर जाते हैं कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, लेकिन मज़ा तब है जब आपकी किरदार, आपकी शख्सियत से भी खुशबू आनी चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट वी ऑल आर एमिंग टुडे, दैट वी ऑल आर गोइंग ऑन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी रिफ्लेक्टिव जर्नी. और आप सबको मैं केवल यही कहूँगा, चाहे थोड़े ही लोग हैं, चाहे हमारे अपने कुछ लोग हैं, सब जहाँ पर जैसे भी हैं अपने वीडियोस को ऑन रखें, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे. ऐसा नहीं कि एक रूटीन सेशन है और हम बैठकर ज्वाइन करके नंबर बढ़ा लिया, लेकिन दिस 40 मिनट्स इज एक्चुअली गोइंग टू कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म यू, कंप्लीटली चेंज योर होल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ and give you a very newer dimension. I would definitely be very happy to interact with you all. और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप सब लोग मेरे साथ इस यात्रा पर होंगे और साथ में चलेंगे. तो enjoy every bit of it and I am going to take you on a very beautiful journey. किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि एक सुकून की तलाश में ना जाने हमने कितनी बेचैनियां पाल ली. एक सुकून की तलाश में ना जाने हमने कितनी बेचैनियां पाल ली और लोग कहते हैं हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली. अब देखिए, ये भी एक मजे की बात है कि हम चलते रहते हैं सवेरे से लेकर शाम तक. बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है और रात को आके नींद की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है. भाग रहा है व्यक्ति, दौड़ रहा है व्यक्ति. अगर आज आप जिंदगी में देखें तो 2 शब्द वायरस से भी ज्यादा हमारी लाइफ में हमको इन्फेक्ट कर चुके हैं. ये 2 शब्दों को, अगर आप 2 लाइनों को आप देखेंगे, पूरे दिन सभी लोग आप देखिएगा अपनी लाइफ में, हम सब लोग इन शब्दों का बहुत कॉमनली उपयोग करते हैं. और जानते हैं 2 शब्द क्या हैं? ये 2 शब्द हैं, आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम. जल्दी करो, साइन नहीं है, टाइम नहीं है, बिजी हूँ. ये शब्द कॉमनली, और कभी कभी हम भी बोल देते हैं. दिस शब्द हैव बिकम सिनोनिमस विद आवर लाइफ. एंड साइंस ये कहती है कि जो लोग इन शब्दों को अपनी लाइफ में लगातार यूज करते हैं, आई एम बिजी, तो क्या होता है कि उनके अंदर तनाव ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज हो जाता है. उनकी परफॉर्मेंस लेवल सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाती है. तो आज सब लोग जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, सब लोग अपने वीडियोस को ऑन करके फिर मेरे साथ कुछ शब्द ज़रूर बोलेंगे. आज पहली जो हम लोग बात करेंगे वो ज़रूर सब अपने साथ अपने मुखारबिन से वहीं पर ज़रूर बोलेंगे कि आई हैव नेवर लेट दिस वर्ड बिजी एसोसिएट विद मी. तो आज बोलेंगे कि मैं अपनी लाइफ में बिजी नहीं हूँ. आई डिलीट दिस वर्ड फ्रॉम माई लाइफ, बिजी फ्रॉम माई डायरेक्टरी, फ्रॉम माई डिक्शनरी. इसको डिलीट करिए and replace this word busy with another beautiful word that is called be easy in my life. देखो, busy word में ही एक बहुत सुंदर शब्द छुपा हुआ है, be easy. So you are busy outside, but आपका मन, आपका जो mind है, that is very easy. The moment you bring this transformation, आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव, आपकी लाइफ का नज़रिया बदल जाता है. दोस्तों, ये बहुत आवश्यक है. हम चाहे कितने भी कॉल्स दें, कितने भी बड़े बड़े प्लान बनाएं, लेकिन हु इज गोइंग टू मेक दोज प्लान्स फंक्शन? अगर कोई क्लीनलीनेस की बात करेंगे, हम पूरे संसार को क्लीन देखना चाहते हैं, हम भारतवर्ष को देखना चाहते हैं, हम अपने शहर को देखना चाहते हैं, हम अपने मोहल्ले को देखना चाहते हैं, दोस्तों हम अपने घर को देखना चाहते हैं. लेकिन बाहर कब चेंज होगा? जब चेंज को मैं स्वयं अपने जीवन में लाऊंगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बारी एक महात्मा था. वो महात्मा बहुत सुंदर तपस्या करता था, बहुत सुंदर मेडिटेशन करता था. तो उसकी एक बड़ी यूनिक आदत थी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो शीशे को 2 बारी देखता रहता था. लोग उससे बोलते कि भाई तुम मेडिटेशन करते हो, लेकिन ये 2 बारी शीशे देखने की बात हमको समझ में नहीं आती. तो उसने मुस्कुराते हुए उनको एक दिन अपने पास बुलाया और कहा, बैठो. उसने कहा, जब भी मेरे जीवन में कोई समस्या आती है, कोई चैलेंज आता है, कोई भी परीक्षा आती है, तो मैं शीशे के अंदर देखता हूँ. तो लोगों ने पूछा, आपको क्या दिखता है?
कहते हैं शीशे के अंदर मुझे दिखता है कि मेरी समस्या का कारण क्या है। तो लोग हंसने लगे, इसमें तो आपको अपनी शक्ल दिखती होगी महात्मा जी। उसने कहा बिल्कुल ठीक बोलते, मेरे जीवन की सारी समस्याओं का जो मूल कारण है वो बाहर नहीं, वो स्वयं मैं हूँ। आई एम क्रिएटिंग ऑल दोज प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ बाय माई थॉट्स, बाय माई ओन बिलीफ सिस्टम्स। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो हमें समझ में आया, आप दूसरी बारी क्यों देखते हो? तो वो हंसने लगा, उसने कहा बैठो। उसने कहा कि मैं दूसरी बारी इसलिए देखता हूँ कि जब मैं दूसरी बारी देखता हूँ तो मुझे अपनी सारी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो दिखता है। तो उसने कहा उसमें भी आपको अपना चित्र दिखता होगा। उसने कहा बिल्कुल ठीक बोलते हो, यदि मेरे जीवन का प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं तो मेरे जीवन की सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो भी कहीं बाहर नहीं, वो भी मेरे पास ही है। तो दोस्तों, आज का जो सबसे सुंदर और पहला मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा वो यही है कि इफ़ यू डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। अब बात करते रह जाएंगे, वेबिनार्स करते रह जाएंगे, बेस्ट से बेस्ट स्पीकर्स को बुलाते रह जाएंगे, यू कैन हैव द मोस्ट एलीट एंड द बेस्ट पीपल आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट इफ यू वांट योर ड्रीम, इस पखवाड़े को, इस क्लीननेस पखवाड़े को यदि आप यथार्थ रूप देना चाहते हैं, यदि आप इसको सकारात्मक रूप देना चाहते हैं, इसको एक साकार प्रत्यक्ष रूप में एक सुंदर पौधे की तरह प्रस्फुटित होता हुआ देखना चाहते हैं, तो दोस्तों वो परिवर्तन आपको स्वयं लाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कहना कि ये परिवर्तन शाम को जाकर कहें कि भाई आज सेशन हुआ बहुत अच्छा था, आपके लिए बहुत अच्छा था। दोस्तों नहीं, ये सेशन मेरे लिए बहुत अच्छा था। उस परिवर्तन की अग्नि को मुझे स्वयं अपने अंदर ज्वलनशील करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इस मुख्य पहलू को हम नहीं समझेंगे, हम अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। हम दौड़ते रहेंगे, बिजी हूँ, जल्दी करो, टाइम नहीं है, केवल ये शब्द हमारी लाइफ के चलते रहेंगे। और कई लोग तो खाली बैठे बैठे भी बहुत बिजी रहते हैं, वो बैठे रहेंगे और वो कहेंगे कि बहुत बिजी हूँ, कर क्या रहे हैं, बस कुछ कर रहे हैं, लेकिन समय नहीं मिलता है। तो इसलिए आज फर्स्ट मैसेज जो हम लेकर जाएंगे कि चेंज अपने अंदर लाना है। दोस्तों, आज जो भी बात मैं आपको बताऊंगा 3 भागों में वो डिवाइडेड होगी, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि मैं आपको कोई भी आपकी लाइफ चेंजिंग बात बताने नहीं चाह रहा। मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा जिसको आपको पूरी लाइफ फॉलो करना है, पॉसिबल नहीं है। मैं आपको कोई ऐसी बात भी नहीं बताऊंगा जिसको आपको 1 महीना या 1 हफ्ता फॉलो करना है। लेकिन दोस्तों, आपसे एक अनुरोध जरूर करूंगा कि जो भी बात आज मैं बताऊंगा आपको, उस बात को कम से कम 1 दिन अपने जीवन में जरूर फॉलो करें। यदि उस 1 दिन में आप इसको अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका मन बदल जाएगा और आपकी लाइफ बहुत सुंदर और पावरफुल बन जाएगी। दोस्तों, तो क्लीनलीनेस की जब हम बात करते हैं, तो क्लीनलीनेस अगर नहीं होती है तो क्या होता है? डिजीज की उत्पत्ति होती है। ध्यान से देखिए इस शब्द को, इसको समझिए। जो डिजीज शब्द है वो 2 शब्दों से बना है, डिस और ईज। आपको ये सेशंस चाहिए होंगे, रिकॉर्डिंग भी या स्लाइड्स भी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको कुछ कुछ दूंगा, लेकिन इसको एंजॉय करिएगा, कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं, जस्ट बी विद द फ्लो। ये डिजीज शब्द 2 शब्दों से बना है, डिस प्लस ईज। ईजीनेस इन अवर लाइफ दैट गोज अवे बोथ फिजिकली एंड मेंटली वी बिकम डिजीज। अब जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं डॉक्टर अतुल को पिछले ऑलमोस्ट 1-2 दशकों से जानता हूँ, और जब भी मेरे को कोई स्किन या कोई एलाइड बीमारी होती है तो डॉक्टर साहब को मैं तंग कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया के सबसे टैलेंटेड डॉक्टर हैं, डेफिनेटली उनके जैसे या उनसे बेटर कोई हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बीमारी जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, कि जब मैं उनके व्यक्तित्व या उनके पास जाता हूँ, मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो उनके पास बैठ के, इससे पहले वो मेरी बीमारी को पूछें, इससे पहले वो मुझसे कुछ बात करें या कुछ कहें, तो उनसे बात करके ही मेरी आधी बीमारी दूर हो जाती है। होता है ना आपके साथ भी, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो बात करेंगे तो आधी बीमारी दूर हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि उसका स्वभाव इतना निर्मल है, उसका स्वभाव बड़ा पावरफुल है। दोस्तों, ये शो करता है कि डिजीज या बीमारी का जो जेनेसिस है वो हमारे शरीर पर नहीं, वो हमारे मन से उत्पन्न होता है। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू से। अगर क्लीनलीनेस की बात करना चाहें, स्वास्थ्य की बात करना चाहें, तो बाहर की क्लीनलीनेस से कुछ नहीं होगा दोस्तों, जब तक हमारा मन, हमारा जीवन सुंदर और सुचारू ना चले, हमारा जीवन पावरफुल ना बने, तब तक ये क्लीनलीनेस नहीं आएगी। तो इसलिए डिजीज अगर हम उसको डील करना चाहते हैं तो वो फिजिकली एंड मेंटली हमको इसको डील करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन और परिस्थिति आती है, वो हमारे साइकी को सबसे पहले प्रभावित करती है, हमारे मन को। जब हमारा मन एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डिसइंटरेस्ट, एंगर, कोविड टाइम में देखिए ना, कोविड ने 0.0001% लोगों को प्रभावित किया, लेकिन अगर एंग्जाइटी देखेंगे तो 100% रेट है। 99 to 100% लोग जो हैं उससे कहीं ना कहीं एंग्जाइटी और डिप्रेशन से पीड़ित थे, क्योंकि मन पर बहुत गहरा असर किया। उन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि कहीं ना कहीं उनको कुछ उनके जीवन में दोस्तों ना हो जाए, और ये
एक चिंताजनक विषय बन जाता है। जब हम मन से बीमारी को स्वीकार लेते हैं तो उसका असर बहुत गहरा हमारे शरीर पर, हमारे रेस्पिरेटरी, पेट पर, मसल्स पर, इम्यूनिटी सिस्टम पर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज पर, सब जगह बहुत गहरा असर दोस्तों पड़ता है। तो आज की इस यात्रा में मैं आपको लाइफस्टाइल के कुछ ऐसे यूनिक तत्व बताऊंगा कि जो आपका हार्ट भी हेल्दी रहे, आपका मन भी बहुत खुशनुमा रहे। क्यों हमें चिंता करनी चाहिए, हमारा जीवन शैली है क्या, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और क्या परिवर्तन हमको छोटे छोटे लाने हैं, और अंत में कुछ मेडिटेशन के साथ हम लोग इस सत्र का अंत करेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द बिगेस्ट किलर ऑफ मैनकाइंड, क्या आप समझेंगे वॉर्स है, कैलामिटीज हैं, ये एपिडेमिक्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, क्या ये हमारी जीवन के सबसे बड़े किलर्स हैं? नहीं दोस्तों, ये हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा जीवन जीने की शैली है, जो हमारे लाइफस्टाइल जो सबसे बड़े एपिडेमिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 90% ऑफ आवर लाइफ, हमारी जो डिजीजेज हैं, दे आर बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतवर्ष में करीब 60 से 70 लाख लोग हर साल अपनी जान को खो बैठते हैं बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, मोटापा है, स्मोकिंग है, हार्ट डिजीज है, ये बढ़ती चली जा रही है। और डिप्रेशन को तो देखिए, वो तो ऐसे दौड़ रहा है जैसे कहाँ वर्ल्ड के अंदर सेकंड थर्ड लार्जेस्ट लेते हैं। एक तथ्य में दिखाया जाता है कि ऑलमोस्ट 6 करोड़ लोग किसी भी समय पर भारतवर्ष में डिप्रेशन से पीड़ित हैं, और एंजाइटी के केसेस को अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4 करोड़ लोग किसी ना किसी प्रकार की एंजाइटी को दोस्तों अपने जीवन में फेस कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आज परिवर्तन करने का एक यथार्थ समय है? क्या आपको नहीं लगता? नहीं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमको अपने जीवन में कुछ ना कुछ चेंज लाना चाहिए? अगर हम इस चेंज को लाते हैं, अगर हम इस परिवर्तन को लाते हैं, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर और स्वच्छ दोस्तों बन जाता है। तो आज सबसे पहले हमको आवश्यक है कि हम अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लें। बाहर नहीं है कंट्रोल, लोगों को कंट्रोल करना, परिस्थितियों को कंट्रोल करना, सिचुएशंस को कंट्रोल करना, ये पॉसिबल ही नहीं है। कंट्रोल लाना है तो स्वयं अपने जीवन में लाना है, अपने स्वयं के मन पर लाना है। जब हम कंट्रोल स्वयं को कर लेते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करते हैं दोस्तों, अपने लिए समय निकालना ये गलत नहीं है, अपने लिए समय निकालना ये बहुत जरूरी है आजकल। और ये समझना कि परिवर्तन एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन परिवर्तन का आरंभ आज से दोस्तों हो सकता है। उस परिवर्तन को स्टार्ट, उस परिवर्तन का जो जेनेसिस है वो हम आज से कर सकते हैं, ये जानना बहुत बहुत आवश्यक है। तो परिवर्तन एक प्रोसेस है। दूसरा, परिवर्तन को प्रायोरिटी अपने जीवन में बनाइए और अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। इस सब के लिए बैलेंस बहुत आवश्यक है, जीवन में संयम, वर्क और लाइफ का बैलेंस। अगर हम क्लीनलीनेस भी लाना चाहेंगे दोस्तों, तो क्लीनलीनेस के लिए बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। आप कहेंगे डॉक्टर मोहित आप क्यों बात कर रहे हैं, मैं आपको खुद दिखाता हूँ। 2001 में जब मैं अमेरिका से आया था, तो आप ये देखिए मेरी फोटो, मैं ऑलमोस्ट 96 kg का था। ये फोटो मेरी डिज्नीलैंड ऑरलैंडो के बाहर है, आप देख रहे हैं, मैं अपने मित्र के साथ खड़ा हुआ हूँ। और उस वक्त मुझे बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ थी, हाइपरटेंशन थी, अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ थी, थायराइड की भी बीमारी थी। और जब मैं वापस आया तो मुझे याद है 16 जुलाई का वो दिन 2001 का, तो किसी ने मुस्कुराते हुए मुझे बोल दिया कि यार तुम कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। अब उसने मजाक में बोला था, ये बात मुझे कहीं ना कहीं लग गई। दोस्तों, मैंने जिम कभी नहीं ज्वाइन किया, किसी न्यूट्रिशनिस्ट को मैंने कभी कंसल्ट नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी लाइफस्टाइल, जीवन शैली को परिवर्तित किया। और 18 जुलाई से लेकर 2001 से 2002 8 फरवरी तक, 9 फरवरी को मेरा कार्डियोलॉजी का एग्जाम था, एंट्रेंस का, मैंने बहुत आराम से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, डाइट को परिवर्तन किया, रोज एक्सरसाइज को मैंने करना आरंभ किया। और दोस्तों, केवल 1 साल के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 26 kgs को लूज कर दिया। आई रीगेन्ड माई ओन पर्सनैलिटी, अपने आप को मैंने दोबारा गेन किया। और आज करीब 2002 से लेके आप देख रहे हैं 2021, यानी 19 से 20 वर्ष जा चुके हैं दोस्तों। आज भी ये इस साल की पिक्चर है, मैं अभी भी इस पर्सनैलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि लाइफस्टाइल को हम अपने, ये एक दिन का नहीं है लाइफस्टाइल, क्लीनलीनेस ये एक दिन का नहीं कि आपने झाड़ू लगाई और भारत क्लीन हो जाएगा, आपने कहीं सफाई की क्लीन हो जाएगी, ये डेली की आदत है, ये हमारी हैबिट फॉर्मिंग है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो भी बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा, उन चीज़ों को मैंने अपने जीवन में कहीं ना कहीं दोस्तों प्रैक्टिस किया है। लाइफस्टाइल, इट इज़ वे वन लिव्स हर ओन लाइफ। क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, और आपका तनावपूर्ण परिस्थितियों को डील करने का तरीका कैसे है। छोटे छोटे परिवर्तन लाने, ऐसा नहीं कि आप गए और आज ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप बैठ गए, नहीं।
छोटे छोटे परिवर्तन लाने हैं, स्मॉल चेंजेस लाने हैं। वो स्मॉल चेंजेस आपकी लाइफ में आपको बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन दोस्तों दे देंगे। तो इसलिए आज लाइफस्टाइल के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 3 आधार स्तंभ माने गए। 3 आधार स्तंभ कौन से हैं? पहला है डाइट, उचित भोजन खाना, दूसरा है एक्सरसाइज यानी प्रॉपर व्यायाम करना, और तीसरा है रेस्ट अर्थात अपने आप को आराम देना। दोस्तों, क्लीनलीनेस के अंदर, अच्छे लाइफस्टाइल के अंदर, अच्छे मन के अंदर, होलिस्टिक वेलबींग के अंदर ये 3 मुख्य बिंदु हैं। अगर 3 मुख्य बिंदुओं की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं तो हम अपनी लाइफ को सुंदर नहीं बना पाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि डाइट केवल शरीर की नहीं, अभी आपने देखा डिजीज की जब हम बात करते हैं तो वो केवल शरीर की नहीं, लेकिन हमारे मन की भी डाइट बहुत आवश्यक है। आज उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं दोस्तों, तो केवल शरीर की एक्सरसाइज नहीं, लेकिन मन की एक्सरसाइज, मन को किस तरह हम साफ रखें ये भी बहुत आवश्यक है। और तीसरा, आराम। आप शरीर को तो 10-12 घंटे सुला लेते हैं दोस्तों, लेकिन मन को आराम देना ज़्यादा आवश्यक है। मेरा आपसे यही प्रश्न है कि जब आप सोते हैं 8 घंटे 10 घंटे, तो क्या उस समय आपका मन भी सोता है? मन को भी सुकून और आराम मिलता है? ये भी समझना दोस्तों बहुत आवश्यक है। तो चलिए इस यात्रा का आरंभ करते हैं। आप कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं और आपको बहुत आनंद आएगा इस यात्रा के अंदर। तो डाइट, एक व्यक्ति ओवरवेट होता क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वो रॉन्ग काइंड ऑफ फूड खाता है। कैलोरीज जो वो लेते हैं वो भी गलत होती हैं और रॉन्ग ईटिंग पैटर्न्स होते हैं। तो सिंपल प्रिंसिपल जो है वो है कीपो प्रिंसिपल, अर्थात कैलोरीज इन शुड ऑलवेज बी लेस देन कैलोरीज आउट। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका कार्य बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। और दोस्तों, बहुत लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ पतले होने की गोली दे दीजिए, कुछ ऐसा जादू मंत्र पढ़ा दीजिए। तो मैं उन्हें यही बताता हूँ, भाई, फूड इज मोर पावरफुल देन एनी वेट लॉस प्रिस्क्रिप्शन पिल। आप जो भी खाएं, खाना, आपका खाना आपको मोटा भी बना सकता है, आपका खाना आपको पतला भी बना सकता है। हर शक्ति आपके भोजन के अंदर है, आपके भोजन के अंदर ये शक्ति। एक व्यक्ति को भोजन क्यों लूज करना चाहिए? अगर आप देखते हैं कि अगर हम मोटापा हमारा बढ़ता है तो फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, इसकी सिग्निफिकेंट परसेंटेज बढ़ जाती है। और मेल्स के अंदर कोलन और प्रोस्टेट कैंसर ये बढ़ जाता है। गॉल स्टोन्स ज़्यादा होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा होना, स्ट्रोक होना, ये भी सिग्निफिकेंटली दोस्तों इंक्रीज हो जाता है। और यदि आपका 1 किलो वेट बढ़ता है तो आपको समझना चाहिए कि आपके शरीर को 3 किलोमीटर एडिशनल ब्लड वेसल बनानी पड़ेगी। 1 किलो वेट यानी इतनी पंपिंग, 3 किलोमीटर की एडिशनल यात्रा आपके खून को करनी पड़ेगी ताकि वो आपके ऑर्गन्स तक दोस्तों पहुंच जाए। आज आपको कुछ फैक्ट्स मैं बताना चाहूँगा, साइंटिफिक फैक्ट्स, कि प्लांट बेस्ड डाइट्स जो हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम्स यानी दालें हैं, ये हमारे साथ आज साइंटिफिक रूप से सर्कुलेशन वर्ल्ड की नंबर 1 जर्नल मानी जाती है, टॉप जर्नल्स में से। ये दिखाती है कि वेजिटेरियन डाइट हमारी मोर्टेलिटी को सिग्निफिकेंटली कम करता है। एक और स्टडी आई थी जो प्रेडिमेट, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से थी, उसके अंदर दिखाया गया कि अगर वेजिटेबल कंजम्पशन हम ज़्यादा लेते हैं ओवर एंड अबव, यानी इंस्टेड ऑफ द एनिमल कंजम्पशन, हमारे डेथ होने के चांसेस 41% कम हो जाते हैं। ऑल साइंस, ये साइंस की स्टडी है, प्रो वेजिटेरियन कोहॉर्ट जो है वो 41% डिक्रीज इन डेथ हो जाता है। और तीसरा दोस्तों, एडवेंटिस्ट हार्ट स्टडी एक और आई थी जिसके अंदर दिखाया गया मीट प्रोटीन्स, नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन 61% इंक्रीज इन मोर्टेलिटी करते हैं। और यदि आप मीट को नट्स और सीड्स से चेंज करते हैं तो आपके डेथ के चांसेस 40% कम हो जाते हैं। तो मीट प्रोटीन्स आर अनहेल्दी, ये सब साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। और हम जानते हैं, डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितना सुंदर कहा था कि वेजिटेरियन फूड हमारे इंप्रेशन पर, वो खुद भी, लियो टॉल्स्टॉय, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, कितने लोग थे, दे वर ऑल वेजिटेरियन। इट लीव्स अ डीप इंप्रेशन ऑन आवर नेचर। और अगर हमारा पूरा वर्ल्ड वेजिटेरियनिज्म को अडॉप्ट करता है तो हमारी ह्यूमन मैनकाइंड की डेस्टिनी दोस्तों चेंज हो जाएगी। वेजिटेरियन डाइट में कैंसर रिडक्शन होता है, बोन की जो हेल्थ है वो बरकरार रहती है दोस्तों, और इसी प्रकार डायबिटीज होने के चांस भी कम हो जाते हैं यदि यथार्थ वेजिटेरियन खाया जाए। ऐसा नहीं, वेजिटेरियन के अंदर जो भी हम खा रहे हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। एंड वेजिटेरियंस मीट ईटर्स को ऑलमोस्ट 6 से 8 साल आउटलिव कर देते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेटर बनाता है और इन्फ्लेमेशन को भी दोस्तों कम करता है। इतनी शक्ति वेजिटेरियन फूड में। तो वेजिटेरियनिज्म के बारे में अगर हम कहें, इसको हम कहते हैं स्मार्ट हार्ट डाइट यानी हेल्दी डाइट। क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों,
सिंपल टिप्स वेजी डाइट खाने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप भोजन करें, आप भोजन को टेबल पर बैठकर करें। डाइनिंग रूम में बैठकर करना हमारे भोजन की वैल्यू को बढ़ाता है। कई लोग लैपटॉप के साथ, मोबाइल के साथ, टेलीविजन के साथ, व्हाट्सएप खोलकर तेज गाने सुनते हुए भोजन करते हैं। इसकी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट वाइब्रेशंस का हमारे भोजन पर भी होता है और उसकी वैल्यू पर भी होता है। तो डिस्ट्रैक्शंस भोजन के समय बिल्कुल नहीं होने चाहिए। भोजन जब भी आप खाएं, कभी भी पैकेट से स्ट्रेट ना खाएं। थोड़ा भोजन लेकर अपने थाली में परोसें, छोटी प्लेट लेकर उसको धीरे धीरे खाएं। और 10 बजे के बाद यदि कोई भी भोजन, 9:30-10 बजे के बाद यदि आप भोजन ग्रहण करने के आदी हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भोजन आपके लिए भोजन नहीं, आपके लिए पॉइजन का काम करता है। बहुत आवश्यक है, हमारी बॉडी साइकिल इस तरह सेट है कि करीब 8, 7, 8, 9 बजे तक हमको भोजन रात का कर लेना चाहिए। और यदि किसी कारणे अकारणे हम लेट हो जाते हैं तो रात का भोजन बहुत हल्का फ्रूट्स या जिसमें पपीता या कोई हल्की मील लेकर, दलिया टाइप लेकर आपको समाप्त दोस्तों कर देना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग है दोस्तों। कम से कम 3 से 4 सर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के आपको डेली खाने। मैं मॉर्निंग के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर आता हूँ। आफ्टरनून के अंदर लंच से पहले मैं सैलड या कुछ जरूर लेता हूँ। और शाम को भी जब खाएं तो करीब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जरूर लें। ये ध्यान रखिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंजम्पशन हमेशा खाने से पहले होना चाहिए। खाने के बाद इसको खाना उसकी कैलोरी को समाप्त करता है और उसका बेनिफिट दोस्तों हमको नहीं मिलता। तो कलर्ड वेजिटेबल न्यूट्रिशियस है, डार्क ग्रीन है, ऑरेंज है, येलो है, हर प्रकार की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को आप जरूर दोस्तों खाएं। सबसे कम क्या खाना है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक रिफाइंड फ्लावर है, वाइट ब्रेड है, पास्तास हैं, ये हमारे शरीर को नुकसान देते हैं। इसका उपयोग, इसका कंजम्पशन आप सबसे कम करें। और ये फाइबर ना होने के कारण हमारी शुगर लेवल्स को एक्यूटली बढ़ाते हैं, जिसका हमारे शरीर पर दोस्तों बहुत बहुत नुकसान होता है। कई लोग कहते हैं कि भाई हमको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, क्या हम नमक ना खाएं? तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि 2 ग्राम तक नॉर्मल नमक आप ज़रूर खा सकते हैं। यदि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है तो भी आप ले सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा सॉल्ट हम किस में खाते हैं, ये ध्यान से सुनिए। आप जब टिंड जूसेस लेते हैं, टिंड फ्रूट्स लेते हैं, सॉसेज लेते हैं, टिंड चटनियाँ लेते हैं, नमकीन लेते हैं, अचार लेते हैं, पापड़ लेते हैं, इसके अंदर एक सर्विंग के अंदर कम से कम 2 से 3 दिन का नमक होता है। तो यदि आपको ब्लड प्रेशर या ऐसी कोई अप्रॉक्सिमल बीमारी है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसका कंजम्पशन सबसे कम से कम करें। और कभी भी सलाद और फ्रूट्स के ऊपर सॉल्ट को स्प्रिंकल करना वो भी अवॉइड करें। सॉल्टी सैलड ड्रेसिंग्स को कम खाएं। और बाकी नमक आप दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल ले सकते हैं। कई लोगों को समोसा, कचौड़ी, पकौड़ा बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है और खाने में कोई हार्म भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको कुछ तथ्य जरूर बताना चाहूँगा इनकी क्लीनलीनेस, इनकी हाइजीन के बारे में। दोस्तों ये समझिए, जब भी हम लोग समोसा, कचौड़ी, पकौड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स पर ऑर्डर करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऑर्डर करते ही हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि विदिन आधे घंटे में वो हमारे पास आ जाए, नहीं तो उसके पैसे हम नहीं देंगे। तो दे भी देते हैं दोस्तों, लेकिन इसका एक कारण है वो क्यों दे देते हैं। क्योंकि वो इन सब चीज़ों को आधा तल के ऑलरेडी गर्म ऑयल के अंदर अपने पास पैक करके रखते हैं। तो सपोज डॉक्टर मोहित ने ऑर्डर किया और जैसे ही मैंने कहा कि मुझे 2 समोसे चाहिए, वो आधे पके हुए समोसे को लेंगे, उसको गर्म उबलते हुए तेल, जो कि ऑलरेडी उबल रहा है, उनके पास समय नहीं है कि वो आपके लिए गर्म करेंगे, उस उबलते हुए तेल में डालेंगे, उसको पकाकर 5 मिनट के अंदर, समोसा सिकने में इतना टाइम लगेगा, और लाकर पैक करके आपके पास भिजवा देंगे। आप खाएंगे, बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब, बहुत मजा आया, बहुत ही टेस्टी फूड था। लेकिन दोस्तों जब ये आधा पका हुआ फूड उस ऑलरेडी तले हुए ऑयल में जब दोबारा तला जाता है तो वो फूड नहीं रहता, वो जहर बन जाता है। उसके अंदर 250 कार्सिनोजेंस आ जाते हैं, ट्रांस फैट्स आ जाते हैं, जो हमारे हार्ट अटैक जैसी बीमारी को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देते हैं। इसलिए जब भी तला हुआ भोजन खाएं, इस चीज को असूल बनाएं, उसको एक बारी में कंप्लीटली तलना है। घर में हो, बाहर हो, उसको एक बारी तलें। उसको बार बार तलना उसको बहुत बहुत उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को समाप्त करता है और हमारे शरीर के लिए दोस्तों वो बहुत हानिकारक हो जाता है। पेस्ट्रीज हैं, बिस्किट्स हैं, डोनट्स हैं, ये सब चीज़ें आप कभी कभी ले सकते हैं। कभी कभी कचौड़ी, कभी कभी समोसा, कभी कभी पकौड़ा, कभी कभी मीठा, आप सब ले सकते हैं। लेकिन संयम हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट असूल है। संयम है तो जीवन में सब कुछ है। कई लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स, टिन जूसेस एंड फ्रूट्स का बहुत शौक है दोस्तों, मुझे भी बहुत शौक है। लेकिन आज से करीब 15 से 20 साल पहले मैंने टिन जूसेस और फ्रूट्स को बिल्कुल कंप्लीटली समाप्त कर दिया। आज भी जब मैं फ्रेश जूसेस लेता हूं तो घर के अंदर
मैं मॉर्निंग जॉग करके आता हूँ तो सिंपल रेसिपीज लाइक पालक लिया, उसके अंदर थोड़ा सा केला डाला या थोड़ी सी कीवी डाली या फ्रेश सेब चॉप करके डाला, उसको पानी डाल के उसको वहीं पर उसके अंदर धनिया डालकर मिंट डालकर उसको ग्रेट की उसको मिक्सी में डाला और फ्रेश जूस लेकर मैं उसको कंज्यूम करता हूँ। ये हमारे लिए एलिक्सर्स का काम करते हैं। और यदि आप में से कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीने का बार बार आदी है, बच्चे आदि हैं, तो आपको ये जानना आवश्यक है कि यदि हम इनकी सर्विंग्स रेगुलरली लेते हैं तो 20% चांसेस हाई हो जाते हैं हमको डायबिटीज होने का। और ना केवल ये, डेथ के भी सिग्निफिकेंट चांसेस हाई हो जाते हैं अगर शुगर हमारी कैलोरीज के 10% से ज़्यादा बनती है। तो दोस्तों बहुत आवश्यक है हम इस चीज़ को समझें, इसको हम खुद डिसीजन लें कि ये हमारे लिए कितनी वैल्यूएबल है। दोस्तों तेल और घी की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। आजकल लोग कहेंगे कि भाई घी मत खाओ, घी नुकसान करता है, और मैं तो अपने हार्ट अटैक वाले मरीजों को ही बोलता हूँ कि कल से तुम घी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संयम से खाओ, सोच के खाओ। अगर आप घी में नहाते नहीं हो, घी के अंदर सवेरे दोपहर शाम पराठे नहीं बनाते हो, घी के सवेरे और शाम छौंक नहीं लगाते हो लगातार, तो आप घी खा सकते हो। थोड़ा सा घी लेना वो हमारे ब्रेन को, हमारे शरीर को एनर्जाइज करता है। लेकिन वनस्पति को, पाम ऑयल को, इनको रेगुलरली डेली पावरफुल तरीके से कंज्यूम करना कभी कभी हमारे लिए नुकसानकारक दोस्तों हो सकता है, तो संयम से लीजिए। और ऑयल्स का तो आजकल फैशन है, अलग अलग प्रकार के ऑयल्स हैं, अलग अलग ब्रांड प्रमोट करती हैं, इनके मिथ्स कभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं सब ऑयल्स को प्रमोट करता हूँ। ऑलिव ऑयल अगर लोग कहते हैं तो ऑलिव ऑयल जो लोग कहते हैं बहुत स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल है, बिल्कुल है, लेकिन जो स्टडीज हुई हैं वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पे हुई। और जानते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो 3 से 5,000 रुपये प्रति लीटर आता है, जो ना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ना आप अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरा इसका बेनिफिट तब होता है जब ये कच्चा कंज्यूम किया जाए। हमारे इंडियन डाइट्स के अंदर जनरली ऑयल को पकाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों मेरा आपके लिए मैसेज है कि इंडियंस के लिए, भारतवासियों के लिए मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल सबसे बढ़िया सस्ता ऑयल है, आप उसको यूज़ करें। साथ में सनफ्लावर ऑयल भी रखें, कॉर्न ऑयल भी रखें, राइस ब्रेन ऑयल भी रखें, ओलिव भी रखें। हर 15 से 20 दिन इन ऑयल्स को रोटेट करते रहें, जैसे हम अपने परिवार में करते हैं। घी भी डालें, तेल भी डालें, एंजॉय करें, लेकिन संयम से, बहुत सोच कर, देख कर। रोज इनका अत्यधिक कंजम्पशन कहीं ना कहीं हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों दही का हमारे जीवन में कंजम्पशन बहुत आवश्यक है। लो फैट और नॉन फैट योगर्ट जो घर का बना हुआ दही है वो हमको बहुत फायदा देता है। और बेकिंग और माइक्रोवेविंग बहुत यूजफुल हमारे मेथड्स ऑफ कुकिंग है। और डीप फ्राइंग की जगह यदि आप शैलो फ्राइंग या लाइट स्टर फ्राइंग यूज करेंगे, ये भी आपको बहुत बेनिफिट दोस्तों देगा। तो यदि मैं समराइज आपके लिए करना चाहूँ तो एडेड शुगर्स को अवॉइड करें, एनर्जी ड्रिंक्स को अवॉइड करें, फर्मेंटेड और डेयरी प्रोडक्ट्स को आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन दालें हैं, कॉफ़ी और चाय जिनको शौक है ज़रूर लें, लेकिन ध्यान रखें कॉफ़ी और चाय यदि आप लेते भी हैं तो उसके अंदर शुगर ना एडेड हो। हम तो फिर भी कभी कभी ले लेते हैं, और मिल्क ना एडेड हो। तो जितनी भी स्टडीज़ के अंदर दिखाया गया है उसके अंदर कॉफ़ी और शुगर का जो बेनिफिट है एक्चुअली वो ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी के साथ दिखाया गया है। मशरूम्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये सारे हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो आप फूड्स को एंजॉय करें। नट्स हमारे जीवन का रोज कंजम्पशन होना चाहिए दोस्तों। अलसी के बीज हैं, 30 ग्राम है, 20 to 30 ग्राम, जिसमें बादाम है, अखरोट है, काजू नहीं, बादाम और अखरोट और पिस्ता। आप इसको ज़रूर डेली अपने बच्चों को भी दें। अलसी के बीज हैं, चिया सीड्स हैं, इनको ज़रूर कंज्यूम करें। और साथ में ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज जो हैं, इस प्रकार की बेरीज, इनको भी आप एक्स्ट्रा कंज्यूम कर सकते हैं। तो जूसिंग वगैरह स्ट्रांगली ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये दोस्तों रिकमेंडेड नहीं है। तो एक ओवरव्यू मैंने आपको भोजन के बारे में दिया है, और प्रश्न भी हो सकते हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये समझना, ये सब बातों को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों पानी, हमारा शरीर 75% वाटर है, तो कम से कम ब्रेन 80% वाटर है, लंग्स 90% वाटर है, हार्ट अगर आप देखेंगे तो हार्ट भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर है। तो इसलिए दोस्तों पानी का कंजम्पशन, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर हमको कंज्यूम करना चाहिए। ये हमारे स्किन को क्लियर बनाता है, हमारी थकावट को दूर करता है, हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है, हमारे जॉइंट्स को ग्रीस करता है, और फ्लूइड बैलेंस को दोस्तों मेंटेन करता है। मसल फ्यूल की तरह ये कार्य करता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि पानी को ज़रूर कंज्यूम करें। दोस्तों शरीर के लिए हमने भोजन की बात की, लेकिन जिस तरह शरीर को हम भोजन खिलाते हैं उसी प्रकार अपने मन को भी भोजन देना बहुत आवश्यक है। और मन का भोजन क्या होगा? जैसे शरीर का भोजन है स्मार्ट हार्ट डाइट, उसी प्रकार मन का भोजन है वो है स्मार्ट माइंड डाइट।
दोस्तों मन को आप केवल स्थूल भोजन से नहीं कर सकते सेटिस्फाई, उसको सकारात्मक संकल्प, पॉजिटिव संकल्प हमको देने हैं। तो आज जो भोजन आप खा रहे हैं, मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा कि भोजन की क्वालिटी के साथ साथ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी, यानी उसकी वाइब्रेशंस किस प्रकार की है। दोस्तों जब हम किसी को मार कर खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, इस प्रकार के खाते हैं, तो उसके अंदर किस प्रकार की वाइब्रेशंस होंगी, उसके अंदर जिस जानवर को, जिस प्राणी को मारा जाता है, उसकी खुशी की वाइब्रेशंस होंगी, उसका दर्द उसके अंदर भरा हुआ होगा, उसके अंदर उसका दर्द होगा। दोस्तों वो दर्द जब हम प्रोटीन्स के नाम पर खाते हैं तो वो हमारी भी वाइब्रेशंस को, हमारी भी शक्ति को बहुत पावरफुल तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसलिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे का जो भोजन है, जब हम कहते हैं तो वो भोजन खाना नहीं कहते, उसको हम भोग, उसको प्रसाद, उसको लंगर, उसको होली फूड के नाम से दोस्तों कहा जाता है। तो आज मैं आपको केवल एक संकल्प जरूर दूंगा कि आज जब आप भोजन खाएं, आपने लंच किया होगा, रात का भोजन करेंगे, शाम की चाय लेंगे, कल मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करेंगे और कल फिर लंच करेंगे, तो एक दिन के लिए इस एक्सरसाइज को दोस्तों जरूर करेंगे कि जब भोजन खाएं तो 10 सेकंड रुकें और 10 सेकंड रुक कर आप बहुत ध्यान से उस भोजन के अंदर परमात्मा का प्यार डालें, उस परमात्मा का शांति और पॉजिटिविटी के वाइब्रेशंस डालें और परमात्मा के लिए थैंक्स की वाइब्रेशंस भी दोस्तों डालें। इन 4 फीलिंग्स को जब हम अपने भोजन में डालते हैं तो दोस्तों हमारा भोजन भोजन नहीं रहता, हमारा भोजन प्रसाद बन जाता है, इट बिकम्स अ भोग। और इस भोजन को जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर और हमारे मन दोनों को शक्ति देता है। आज से 100 साल पहले जो हमारे पुराने महात्मा होते थे, जो साल साल के अंदर केवल कंद मूल या थोड़े फल फ्रूट खाकर जिंदा रहते थे, वो कैसे होता था? क्योंकि उसके अंदर वो वाइब्रेशंस उसको पावरफुल बना देते थे। वो भोजन ही उनके शरीर पर, उनके चेहरे पर इतना ग्लो लाता था कि उनको शक्ति का अनुभव और दूसरों को भी इतना स्नेह का अनुभव होता था। और इसके पीछे बहुत साइंस है दोस्तों। क्यों? क्योंकि डॉक्टर मासारू इमोटो ने, जो जापानीज साइंटिस्ट है, उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने दिखाया कि यदि इस पानी की बूंद, उन्होंने पानी की बूंदों को लिया, आप देखिए, और एक पानी की बूंद को नेगेटिव एनर्जी दी कि यू आर अगली, और जैसे ही उन्होंने नेगेटिव एनर्जी दी, आप देखिए उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल खराब हो गया, एक अगली स्ट्रक्चर के रूप में बदल गया। इसी प्रकार दोस्तों जब उन्होंने उसी पानी की बूंद को थैंक्स की वाइब्रेशन दी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी, तो वो पानी की बूंद एक सुंदर डायमंड के रूप में दोस्तों परिवर्तित हो गई। कैसे? केवल संकल्पों के द्वारा। ये साइंस के प्रूवन एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसी प्रकार भोजन देखिए, ये चावल के दानों को देखिए, सेम चावल के दाने, सेम जार्स हैं, सेम जगह पर रखें, लेकिन 3 डिफरेंट इमोशंस हैं। एक जगह हेट की भावना है, एक जगह कोई वाइब्रेशंस हमने नहीं दी, और एक जगह है लव की भावना। जब हम प्यार भोजन को देते हैं, उसके अंदर शक्ति, परमात्मिक शक्ति भरते हैं, तो दोस्तों वो भोजन शक्तिशाली रहता है, वो हेल्दी रहता है, आपके सामने एक्सपेरिमेंट्स में दिख रहा है। और जब हमने नेगेटिव वाइब्रेशंस दी भोजन को, तो देखिए कितनी जल्दी वो भोजन सड़ जाता है। तो इसलिए हमारा फूड केवल ये नहीं कि कैलोरिक वैल्यू क्या है, लेकिन कौन बना रहा है, किस वाइब्रेशन के साथ बना रहा है, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए दोस्तों 47 ईयर्स हमारी लाइफ के अंदर, हमारे परिवार में 3 डॉक्टर्स हैं, एक इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर है, हमारे यहाँ भोजन हम लोग स्वयं बनाते हैं, और उस भोजन को बनाकर सवेरे, दोपहर और शाम परमात्मा को भोग जरूर लगाया जाता है, और भोग लगाकर उसको शक्तिशाली बनाकर तब वो भोजन बहुत संयम के साथ, परमात्मिक प्यार के साथ दोस्तों ग्रहण किया जाता है। तो ये एक्सरसाइज आप एक दिन करके देखें, आप देखिए कितना सुकून, कितना चैन, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स एक दिन के अंदर कहां से कहां दोस्तों बढ़ जाएगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। इसी प्रकार दूसरी जो भोजन आपको मन को खिलाना है दोस्तों, वो है इमोशनल डाइट। जैसे शरीर के भोजन को आपने शक्तिशाली बनाया, इसी प्रकार मन को किस प्रकार के संकल्प आज आप फीड कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। आज आप प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया से घिरे हुए। व्हाट्सएप के साथ जिंदगी आरंभ होती है सवेरे गुड मॉर्निंग, और व्हाट्सएप के साथ ही रोज रात दोस्तों जिंदगी समाप्त हो जाती है। लेकिन वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो हमको आती है, उस नेगेटिव इंफॉर्मेशन को आज हम कंज्यूम करते हैं, और वो भावनाएं जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो दर्द, चिंता, भय और अनसर्टेनिटी की भावनाएं हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दोस्तों उत्पन्न करती हैं। आप स्वयं देखें, कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन आई, हम एक चेन्ड लाइफ हमारी बनी हुई है, कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन आई, उस एनर्जी को हम सबसे पहले एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको कंज्यूम करके अपने शरीर का, अपने मन का अंग बनाते हैं। ना केवल ये, फिर फॉरवर्ड बटन दबा के हम इस एनर्जी को दूसरे को फॉरवर्ड भी करते हैं कि भाई ये मैंने भी खाया, अब ये प्रसाद आप भी खाओ, आप भी थोड़े जहर को पिए। वो रेडिएशन जिसको कहते हैं। लेकिन दोस्तों
एनर्जी के साथ तीन चीजें की जा सकती हैं, या तो इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है, या रेडिएट किया जा सकता है, या उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और योग और मेडिटेशन हमको सिखाता है, सच्ची क्लीननेस हमको सिखाती है कि हम उस एनर्जी को चेंज करके ट्रांसफॉर्म कर दें, उसको परिवर्तित कर दें। यही यथार्थ शक्ति है दोस्तों। आज डिजिटल टॉक्सिसिटी हमारे मन पर बहुत कैटेस्ट्रॉफिक इफेक्ट दे रही है। मैं आप लोगों से केवल एक बात पूछना चाहता हूं, अपने आप से पूछिए कि क्या मोबाइल मेरा है या मैं मोबाइल का? केवल इस उत्तर को अपने आप से पूछिए कि क्या मोबाइल मेरा है या मैं मोबाइल का हूं। आपके पास स्वयं उत्तर आ जाएगा कि आपकी लाइफ किस दिशा की तरफ जा रही है। ओवर कंजम्पशन ऑफ डिजिटल टॉक्सिसिटी, जैसे हाई कैलोरी कंजम्पशन हमारे हार्ट के लिए नुकसानकारक होता है, ओवर कंजम्पशन ऑफ डिजिटल टॉक्सिसिटी हमारे ब्रेन को, हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारे संबंधों को और हमारी हेल्थ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। ई डिजीजेज नहीं आ रही हैं, हमारा ब्रेन थका महसूस करता है, हमारे संबंधों में कहीं ना कहीं दोस्तों मन मुटाव आ जाता है। तो दूसरी एक्सरसाइज दूसरा जो मैं आपको टिप देना चाहता हूं आपके मन के लिए, वो है डिजिटल डिटॉक्स, अर्थात 60-40 एंड 60 प्रिंसिपल। आज एक दिन के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए। रात को सोने से पहले आपको एक दिन के अंदर पूरे 1440 मिनट मिलते हैं दोस्तों, और रात को सोने से पहले केवल 60 मिनट, या मैं ये कहूँ आप केवल 30 मिनट ही अपने टेक्नोलॉजी को ऑफ कर दीजिए, अपने मोबाइल को ऑफ कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप को ऑफ कर दीजिए, डिटैच हो जाइए, इजी हो जाइए। कुछ अच्छा म्यूजिक सुनिए, कोई अच्छी बातों को सुनिए, कोई अच्छी चीज़ों को सुनिए और इन्जॉय करिए उसको। कोई अच्छी ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए, कोई अच्छी बातों को पढ़ें, कोई अच्छी बातों को पढ़ें, ये बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ दोस्तों, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, रात को आपको स्वप्न बहुत श्रेष्ठ आएंगे, क्योंकि अच्छे संकल्पों के साथ आप सोए हैं। और इसी प्रकार जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो फर्स्ट 60 मिनट्स ऑफ योर मॉर्निंग आप अपने जीवन के अंदर मॉर्निंग के अंदर मेडिटेशन के साथ अपनी दिनचर्या को आरंभ करें। अपनी दिनचर्या को परमात्मिक प्यार के साथ आरंभ करें, कोई अच्छे भजन सुने। मेरी दिनचर्या टिपिकली 3:15 बजे डोली आरंभ होती है। 3:15 साढ़े 3 बजे मैं उठता हूँ। उसके बाद 4:45 बजे तक योगाभ्यास का अभ्यास करता हूँ, मेडिटेशन का। उसके बाद मैं करीब 1 घंटा सवा घंटा अपने शरीर के लिए मैं देता हूँ। आई वर्क ऑन माई ओन सेल्फ, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग या शरीर के व्यायाम के लिए मैं देता हूँ। ये 60 मिनट्स टू 1 आवर 2.5 आवर्स आपके शरीर को बहुत पावरफुल रखते हैं और आपके मन को बहुत सशक्त और पावरफुल रखते हैं। उसके बाद पूरे दिन आप जितना भी मोबाइल यूज़ करना चाहें कोई बात नहीं, आप जो भी यूज़ करें, जितना भी सुने, जैसे भी सुने, यू कैन एंजॉय योर वर्क, यू कैन एंजॉय योर मोबाइल, तो इसमें प्रॉब्लम। और शाम को जब परिवार के साथ बैठे हों दोस्तों, तो 40 मिनट फिर मोबाइल को साइड में रखें, उनके साथ बैठे, बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ रूबरू हों, उनकी आंखों में आंखें देखकर उनके प्यार से उनकी बातों को, बुरी बुरी बातों को सुनें। परिवार में हस्बैंड वाइफ भी आपस में एक दूसरे से बात करें। अगर मैं आपसे बात करूँ और आप देखिए मेरा मोबाइल पे ऐसे ध्यान हो, क्या चल रहा है, कैसे है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि भाई ये व्यक्ति यहाँ पर है भी, या ये व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसीलिए बहुत आवश्यक है कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को परिवर्तित करें। तो दूसरा एक्सरसाइज जो मैं आपको देकर जा रहा हूँ दोस्तों, वो है डिजिटल डिटॉक्स, जो आपके शरीर, आपके मन को बहुत बहुत बेनिफिट देगी। हमारे परिवार में करीब 40 ईयर्स से हम लोगों ने ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जो हम भोजन साथ में बैठकर करें, अनटिल कोई ट्रैवल कर रहा हो। देखिए दोस्तों, अपने परिवार में एक ही घर के अंदर अनेकों घर मत बनाइए। आप जो भी करते रहेंगे, आप कितनी भी क्लीनलीनेस रखो, जितना भी बढ़िया घर करो, जितना भी सुंदर अपना एनवायरनमेंट रखो, दोस्तों मन सुंदर होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे परिवार में एक दूसरे के लिए मन हमारे सुंदर नहीं है, घर चकाचक चमक भी रहा है, शहर चमक रहा है, देश चमक रहा है, लेकिन मन के अंदर क्लीनलीनेस नहीं है, तो सफाई का क्या फायदा है? वो सफाई हमको कहाँ लेकर जाएगी दोस्तों? तो हमारे परिवार में भी हम सब लोग इकट्ठे बैठकर एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं साथ में बैठकर। कोई फर्क नहीं किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में, लेकिन एंजॉय करेंगे, साथ में कनेक्ट करेंगे। आधा घंटा भी हम बैठेंगे, वो कनेक्शन हमारे लिए बहुत प्यार और पवित्रता से परिपूर्ण दोस्तों होता है। तो ये डाइट की एक मेजर बात आज मैंने आपके पर्सपेक्टिव रखा है। तो शरीर की डाइट को भी आपने सुना, और दोस्तों मन की डाइट के बारे में भी आज आपने सुना। ये होलिस्टिक वेलबींग का पहला आधार स्तंभ है, जो सबसे बड़ा पावरफुल आधार स्तंभ है। और दोस्तों दूसरा आधार स्तंभ है एक्सरसाइज। कोविड के समय में हमने देखा, और स्टडीज बताते हैं कि जिन लोगों ने रेगुलर एक्सरसाइज करी, उन लोगों के अंदर कोविड की अकरेंस कम हुई। अगर कोविड हुआ भी तो उनको सीवियर इन्फेक्शंस दोस्तों बहुत कम हुए। और यदि मैं आपको साइंटिफिक रूप से बताना चाहूँ, कार्डियोलॉजिस्ट के रूप से, कि जो व्यक्ति डेली आधे से पौना घंटा चलते हैं,
30 to 45 मिनट, चाहे वो मोटे हैं पतले हैं मैटर नहीं करता, ध्यान रखिएगा। अगर वो डेली चलते हैं तो उनकी उम्र के अंदर डेली आधे से पौना घंटा ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। दैट इज वाई each 1 hour of exercise, it increases your life expectancy by 1 hour. Each 1 hour of exercise, it increases your life expectancy by 1 hour. ये एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, ये आपको बहुत बेनिफिट देंगी। कोई भी उम्र हो, स्टार्टिंग एन एक्सरसाइज प्रोग्राम इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग। कभी कभी शॉर्टर ड्यूरेशन करें, उनको एक्यूमुलेट करके एक्सरसाइजेस को करें। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। सेडेंट्री बिहेवियर नहीं होना चाहिए। अगर आप घर पर बैठे हुए हैं काउच पोटैटो की तरह, आप कहे भाई मैं तो थोड़ा हिल लिया, थोड़ा सा मैंने वर्क कर लिया, मैंने मूवमेंट किया, नहीं करेगा। दोस्तों मैं आपको क्लियरली बताना चाह रहा हूँ, हार्ट के आउटकम्स आर सिग्निफिकेंटली पुअर उन लोगों में जो कि डेली मूव नहीं करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है डेली आधे से पौना घंटा मूव करना। ये ओवरवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, ये सबके लिए है। तो ना केवल मूव करना है लेकिन साथ में मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी दोस्तों जरूर। तो 30 to 45 मिनट्स, माय मंत्रा, 30 to 45 मिनट जरूर उठें। हफ्ते में 5 से 7 दिन, मैं तो 7 दिन कहता हूं लेकिन कम से कम 6 दिन तो आप जरूर करें। आज से ही अपनी दिनचर्या को चेंज करें। उसमें कभी कभी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी करें, कभी कभी विगरस एक्टिविटी भी करें। और आपकी स्पीड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी से मैच करना है या जो तेज जॉगिंग कर रहा है उसके साथ मैच करना नहीं। आप अपनी स्पीड को बहुत आराम से अपनी कैपेसिटी के अनुसार दोस्तों आप रख सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन, आपकी इम्यूनिटी बहुत पावरफुल तरीके से बढ़ती है और आपकी वायरल एलर्जीज यानी इंस्पेक्शन जो होते हैं उनके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये ब्रेन हेल्दी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन बढ़ती है, ब्लड फ्लो बढ़ने से हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं लाइक डोपामिन है, एंडोर्फिन्स हैं, ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाते हैं। और जो शांत रखने वाले हार्मोन्स हैं लाइक गाबा, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, हमारी मेमोरी पावर, हमारी अटेंशन स्पैन, ये सब सिग्निफिकेंटली बढ़ती जाती है और हम टास्क को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसलिए एक्सरसाइज इज अ मस्ट। मेरे दिनचर्या में एक्सरसाइज इज अ मस्ट एवरी डे। मैं डेली 10 to 12,000 स्टेप्स एटलीस्ट कम से कम डेली रखता हूँ, चाहे मैं देश और दुनिया के किसी भी कोने के अंदर दोस्तों जरूर। बच्चों के लिए देखिए, जो बच्चों को आप अच्छी हैबिट्स डालते हैं, ऐसा नहीं बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा है और आप खुश हो रहे हैं, टेलीविजन दिखाया और खुश हो रहे हैं, नहीं, उनको बाहर नेचर के पास लेकर जाइए। और जो बच्चे नेचुरल फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। कई बच्चे, कई माएँ कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे तो छोटे हैं, अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हम बाद में करेंगे। नहीं दोस्तों, बच्चा जितना छोटा है ये आदतें उतनी फास्ट उनको डाली जाएं, उतना उनका ब्रेन प्रोग्राम हो जाता है और वो अडेप्ट कर जाते हैं। और हम कहते हैं नहीं नहीं अभी तो हम घर में ही रखें, मोबाइल दें उनको, लैपटॉप दें उनको, गेम्स खिलाएं, भोजन खिलाते हुए उनको कार्टून दिखाएं। ये टिपिकल आदत आजकल है दोस्तों, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत नुकसान कारक हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज आपके जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन दोस्तों शरीर के लिए तो एक्सरसाइज हमने की, लेकिन शरीर के साथ एक्सरसाइज हमारे मन के लिए भी बहुत आवश्यक है। अब मन के लिए एक्सरसाइज क्या करेंगे? आप देखिए, आज अगर हम देखें तो आज के समय में लोग अपने आप को हाइजीन रखते हैं, हाथ धोएंगे, सैनिटाइजर करेंगे, मास्क लगाएंगे, सभी करते हैं। दोस्तों मास्क से हम वायरस को रोक सकते हैं, सैनिटाइजर लगा के हम वायरस को मार सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस सोच का क्या, उस नकारात्मक विचारों का क्या? सोच को कोई मास्क या कोई सैनिटाइजर समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन सोच को परिवर्तित करने का तरीका है एक और सोच को उत्पन्न करना, यानी एक और थॉट को क्रिएट करना। थॉट्स को तो दोस्तों थॉट ही मार सकता है ना, थॉट ही परिवर्तित कर सकता है। और आज यहाँ पर इस माध्यम पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपने मन की किचन के अंदर जाकर देखिए कि आपका मन, जो आपकी किचन है, आपका ड्राइंग रूम है, उसमें किस प्रकार के किचन के अंदर आप मसाले संभाल कर रखते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके मन के अंदर क्या क्रोध, क्या इरिटेशन होना, ईर्ष्या और घृणा एक लोगों के प्रति आना, बार बार कंपटीशन की फीलिंग आना, क्रिटिसिज्म की फीलिंग आना, बार बार कंप्लेन करना छोटी छोटी बातों पर, वो ऐसा है, उसने ये किया, लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना, वो मेरे अनुसार कार्य नहीं करता है,
तो मैं दुखी हूँ या परेशान हूँ दोस्तों, क्या इन 8 फीलिंग्स में से कोई भी फीलिंग्स आपको कहीं ना कहीं आती है? दोस्तों ये सफाई है जो हमें करनी है। अगर ये फीलिंग्स आपके जीवन में कभी भी आपको नहीं आती है तो आप लॉग ऑफ हो जाइए, आपको जरूरत ही नहीं है इस सेशन की। यू आर ऑलरेडी एन एम्पावर्ड इंडिविजुअल। लेकिन यदि क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, कॉम्पिटिशन, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, एक्सपेक्टेशन ये हमारे जीवन में हमको आती हैं, तो दोस्तों आज बहुत जरूरी है अपने मन की सफाई करना। ये सफाई पखवाड़ा जो है ये है क्या? केवल घर के अंदर झाड़ू पोछा लगाने से, बाथरूम साफ करने से, बाहर शहर मोहल्ला साफ करने से क्या हमारा शहर सुंदर बन जाएगा? दोस्तों नहीं बन सकता। जब तक तो लोगों का मन नहीं परिवर्तित होगा, लोगों का मन नहीं साफ होगा, तो आप बाहर झाड़ू पोछा लगा भी लेंगे तो क्लीनलीनेस एक विजन रह जाएगा, लेकिन वो विजन हम कभी भी साकार रूप से नहीं देख पाएंगे। लेकिन आप सोचो, एक ऐसा संसार, एक ऐसा घर जिसके अंदर सब लोगों का मन और दिल बहुत साफ है। दोस्तों जहां हमारे मन और दिल साफ है तो वो घर कैसा होगा? उसके घर के अंदर ऑटोमेटिकली सफाई तो होगी ना। या वो घर को गंदा रखेंगे, मन को साफ रखेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज हम लोगों की छोटी छोटी बातों को अपने मन में रख लेते हैं और मन में रखकर उसको 1 साल नहीं 10-10 साल रखते हैं, और 10 साल बाद हम ये भी कह देते हैं इसको मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तो मैं भी कहता हूँ ठीक है भाई, अपनी शमशान घाट तक इन बातों को लेकर जाना। क्या ऐसी ही बातों को हम लेकर जाना चाहेंगे दोस्तों? यदि आप घर बाहर अपने सारे बाथरूम सब किचन को रोज साफ करते हैं, अपने आप को रोज नहलाते हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आज कहीं ना कहीं हमको अपने मन की भी सफाई रोज करनी चाहिए? दोस्तों आपसे ही पूछता हूँ, क्या क्रोध आपके लिए नेचुरल है या प्यार हमारे जीवन का अस्तित्व है? हमारे जीवन में शांति अस्तित्व है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे के लिए करुणा की भावना रखना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। जब तक हम एक परिवार में, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, कभी कभी झाड़ लगा देना, कभी कभी लव और लॉ का बैलेंस रखना वो जरूरी है, वो मैं भी करता हूँ, लेकिन मन के अंदर वो कटुता ना आने देना ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति खराब कर रहा है आप उसको बताइए, उसको सिखाइए, लेकिन अगर आप अपना मन उस व्यक्ति के प्रति इकट्ठा कर लेंगे तो ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व की दोस्तों पहचान नहीं। तो बहुत आवश्यक है अपने मन के अंदर प्यार। अब आप क्या रखना चाहेंगे? मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, आप क्या अपने मन में क्रोध को स्थान देना चाहेंगे या प्यार को स्थान देना चाहेंगे? क्या आप अपने मन में एक्सपेक्टेशंस को स्थान देना चाहेंगे या एक्सेप्ट को स्थान देना चाहेंगे? क्या अपने मन में एक ही रख सकते हैं दोस्तों? ईर्ष्या घृणा को स्थान देना चाहेंगे या लोगों के प्रति कंपैशन या करुणा की भावना को आप रखना चाहेंगे? जो भावनाएं आप अपने मन में रखेंगे दोस्तों, वही भावनाएं आपका अस्तित्व, आपका व्यवहार बन जाएगा। जब हम कहते हैं मैं क्रोधी व्यक्ति हूँ, एंगर नेचुरल है, इरिटेशन नेचुरल है, वो इसलिए नेचुरल है क्योंकि मैंने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में डेली प्रैक्टिस किया है, और क्योंकि मैंने इनको डेली प्रैक्टिस किया है तो ये मेरे जीवन का अस्तित्व और साथ बन जाती है। इसलिए दोस्तों इस परिवर्तन को लाइए। आज के समय में एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक दूसरे के लिए ग्रज होल्डिंग नहीं करना, एक दूसरे को सहयोग देना दोस्तों, ये बहुत 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 आवश्यक है। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज आज करिए। शाम को किसी व्यक्ति ने आपको कभी कुछ बुरा कहा हो, उसको क्षमा कर दीजिए। कहते हैं ना, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो अपनी जिंदगी को बहुत सहज बनाइए, इजी बनाइए दोस्तों। अपने मन के अंदर इतनी कटुता रखकर हम जाएंगे कहाँ? अपने जीवन में सत्कर्म, हमारे संस्कार, हमारे मूल्य, हमारी वैल्यूज ही तो हमारे साथ दोस्तों जाएंगे। और दोस्तों हमारे जीवन का आखिरी आधार स्तंभ, जो तीसरा पिलर है, वो है स्लीप, यानी आराम। स्लीप एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। 7 से 8 घंटा सोना, बच्चों को भी सुलाना, ये बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों स्लीप के जो सिंपल हाइजीन मेजर्स हैं कि रात को डिवाइसेस को साइलेंट मोड पर रखें, लेट भोजन को अवॉइड करें, तेज़ लाइट को अवॉइड करें, और बेडरूम को कूल और डार्क रखें दोस्तों, ब्राइट लाइट्स को बिल्कुल नहीं, और बहुत रेगुलर स्लीप शेड्यूल रखें। कई लोग रात को 12-1 बजे, मेरे बहुत मित्र हैं, वो 12 बजे खाना खा रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, कोई ज़िंदगी का हिसाब किताब नहीं है दोस्तों। हमारी जो स्लीप हार्मोन है मेलाटोनिन, वो पीक लेवल्स पे 9 से 10 बजे के बीच में रिलीज होता है, और वो हमारे ब्रेन को, हमारे शरीर को बिल्कुल काम कर देता है, हमको बहुत प्रॉपर स्लीप देता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि टाइमली आप सोकर 9, 10, 10:30, 11 बजे तक सोकर आप अर्ली मॉर्निंग के अंदर अपनी दिनचर्या को आरंभ करें। मैं टिपिकली 10:30, 11 बजे तक मैं विश्राम को जाता हूँ, कभी कभी लेट भी हो जाता है, और 3:15 बजे मैं उठ जाता हूँ। 4-4.5 घंटे की नींद मिलने बिल्कुल परफेक्ट है। और क्या आप कहेंगे कि इतनी नींद इनफ है दोस्तों? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कई लोग 10-10 घंटे भी सोएंगे फिर भी कहेंगे बहुत थकान महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है वो नहीं सोता है। तो शरीर को तो आप 10 घंटे सुलाते हैं, लेकिन क्या आपका मन भी उस समय पर सो पाता है? ये पूछिए अपने आप से।
या मन घोड़ा दौड़ रहा है, कहीं इधर उधर भाग रहा है। आज बहुत आवश्यक है कि अपने मन को, अपने शरीर को, दोनों को सुकून की, आराम की नींद से लेना। और जब हमारा मन और शरीर दोनों सोता है, हमारी एंजाइटी लेवल्स कम होते हैं, हमारी डायबिटीज, स्ट्रोक, हमारे हार्ट अटैक, ब्रेस्ट कैंसर, डिप्रेशन, कॉग्निशन, ये सब कम हो जाता है और वेट भी हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है। ये बहुत आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, शरीर को भी नींद पूरी दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप भी 4-5 घंटे सोइए, आप 6 घंटे सोइए, 7 घंटे सोइए, जितनी आपके ज़रूरत है उतना सोइए, लेकिन स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करिए। रात को सोने से पहले शांत, केवल बार बार इनपुट जा रहा है, स्टिमुलस जा रहा है, नहीं, शांत 10-15 मिनट मेडिटेशन, बिल्कुल रिलैक्सेशन। मॉर्निंग के जब आप उठें, फिर मॉर्निंग को शांति से अपनी दिनचर्या को आरंभ करें। तो दोस्तों, जैसे शरीर को आराम देते हैं, उसी प्रकार दोस्तों अपने मन को भी रेस्ट देना बहुत आवश्यक है। आप लैपटॉप को चार्ज करते हैं, अपने मोबाइल को भी चार्ज करते हैं, रोज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे लैपटॉप को चार्ज किया, मोबाइल को चार्ज किया, तो इस शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, मन है, कॉन्शियसनेस है, लाइट है, गॉड स्पॉट है, साइकी है, बीइंग है, जो भी नाम आप उसको देना चाहें, क्या उसको भी हम लोग चार्ज करते हैं? उस चार्जिंग के फिनोमेना को योग मेडिटेशन कहा जाता है, योगाभ्यास कहा जाता है। यह है केयर फॉर अवर सोल। दोस्तों, कहते हैं ना, पूरी जिंदगी में आईने को साफ करता रहा, लेकिन धूल चेहरे पर थी और नए पहचान ही नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, आज बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन के द्वारा अपनी आत्मिक स्वच्छता की तरफ भी हम ध्यान दें, अपनी आत्मा को भी हम सशक्त और पावरफुल बनाएं, और इस प्रक्रिया को मेडिटेशन कहते हैं। जब योग के अंदर हम अपने आप को शरीर नहीं, आत्मा समझ कर बैठते हैं और परमात्मा से पावरफुल वाइब्रेशंस लेते हैं, ज्ञान के, शक्ति के, प्योरिटी के, प्यार, हैप्पीनेस के, आनंद के, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। और जब हमारे विचार बहुत स्लो होते हैं, हमारे विचार बहुत सहज होते हैं, तो हमारे विचार शक्तिशाली हो जाते हैं। इसी को योग कहा जाता है। तो योग के अंदर हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अपने मन से, अपनी आत्मा के थॉट से सारे नेगेटिव मैलों को हटाकर उसके अंदर खुशी के, परमात्मिक प्योरिटी के, प्यार के, आनंद और शांति के विचारों को हम स्थान देते हैं। और जब ऐसे विचार हम अपने मन के अंदर भरते हैं दोस्तों, तो हमारा मन सुंदर, सशक्त और पावरफुल हो जाता है। यही योगाभ्यास है। और आप देखना चाहेंगे कि 15 मिनट की मेडिटेशन आप देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति, अगर आप बैठे हैं, आपके ब्रेन को मैं स्कैन करूंगा, तो आपके ब्रेन के अंदर इस प्रकार का इम्बैलेंस ब्रेन वेव्स मिलेंगी। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पुअर मेंटल हेल्थ है, क्योंकि दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर्स इम्बैलेंस्ड है। लेकिन 15 मिनट यदि आप यथार्थ मेडिटेशन करते हैं, तो आपके दोनों हेमिस्फीयर्स एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और 25 मिनट के अंदर आप कंप्लीटली होलिस्टिक वेलबींग दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज होलिस्टिक क्लीनलीनेस, दिस इज होलिस्टिक एग्जिस्टेंस ऑन आवर अर्थ। दोस्तों, ये एक पावरफुल इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो हमको मेंटल और इमोशनल हेल्थ बहुत पावरफुल तरीके से देता है। तो क्या आप नहीं समझते कि 15-20 मिनट हम लोग निकाल सकते हैं? दोस्तों, मैं आप लोगों से एक ही बात अंत में पूछना चाहूँगा कि आज आपके पास, क्या आज आपके पास एक दिन में 1440 मिनट मिलते हैं? और मैं आपसे यही कहता हूँ कि रोज़ अपने लिए केवल 20 मिनट हमको निकालने हैं। क्या आप समझते हैं वो आप निकाल सकते हैं दोस्त? हमको मोबाइल्स आएंगे, हमको वर्क प्रेशर रहेगा, लोग हमको तंग करेंगे, सब कुछ रहेगा। एक महात्मा के पास कुछ लोग गए और उससे बोले कि महात्मा जी, लोग हमको कहते हैं कि परमात्मा को याद करो, पर हमको तो समय नहीं मिलता है, हम कब परमात्मा को याद करें? तो उसने कहा, तुम ठीक कहते हो, परमात्मा को मरने से केवल एक दिन पहले याद करना, उसी से कार्य चल जाएगा। बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, भाई ये तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपने दिया। पर उनमें से एक विद्वान व्यक्ति बाहर जाते हुए पीछे मुड़ा और बोला, महात्मा जी, हमको ये तो पता ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उसने कहा, फिर आज याद करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों, यही हमारे जीवन का भी सत्य है। तो चलिए, आखिरी 2 मिनट जो हमारे पास बचे हैं, उसमें से कुछ क्षण हम लोग बहुत शांति से, प्यार से परमात्मा की याद में बैठे, और कुछ विचार मैं आपको दूंगा। उन विचारों को आप अनुभव करेंगे और अनुभव करके फिर एक नई यात्रा का, हम सच्चा, जो सफाई पखवाड़ा है, इसको एक नया आयाम, इसको एक सच्चा मीनिंग हम अपने स्व परिवर्तन की अग्नि को प्रज्वलित कर दोस्तों, चलिए सब लोग बहुत वीडियोस को बंद करेंगे, सभी लोग बहुत शांति से, प्यार से रिलैक्स होकर, और मन भी उतना ही
जैसे मंदिर के अंदर मूर्ति, जैसे सीप के अंदर मूर्ति, जैसे मंदिर के अंदर उसकी मूर्ति, उसी तरह इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर मैं आत्मा विराजमान, शक्ति का प्रकाश अनुभव करें, परमात्मा की प्योरिटी और पीस, खुशी की मेरे एक एक संकल्प को श्रेष्ठ शक्ति अनुभव करें। कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं, हर संकल्प में प्यार, शांति और पवित्रता, यही पावरफुल वाइब्रेशंस अपने मन के एक एक कोने में प्रवाहित होने दें। अपने मन कोई भी नेगेटिव विचार, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, इसका जैसे अस्तित्व मेरे मन में नहीं है। ये अपने परिवार और अपने संबंधों में भी हम रेडिएट करते हैं। बहुत पवित्र परमात्मा मेरा पिता है, मैं उसकी इसी हर कर्म अपने आप को श्रेष्ठ पर विशेष यही सच्चा जीवन है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम परिवर्तित करते जाएंगे अपने जीवन को, अपने संकल्पों को, तो हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ और पावरफुल बनता जाएगा। अगर हमें इस दुनिया से और कहीं से भी अंधकार को मिटाना हो दोस्तों, तो उस अंधकार को मिटाने के लिए एक कमरे से हमको एक दिया जलाने की आवश्यकता है, हमको 10 दिए जलाने की आवश्यकता नहीं। मेरा आपसे केवल एक प्रश्न है कि क्या इस जीवन के अंधकार से हम अगर उसको मिटाना चाहें, तो क्या वो एक दिया बनने के लिए हम लोग तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अपने आप से पूछिए। अगर इस क्रांति को आप स्वयं में प्रज्वलित करते हैं, तो आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ और पावरफुल हो जाएगा, बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। ओम शांति। Thank you, Mohit. I think there's nothing left after this stupendous talk. कुछ कहने को रह नहीं गया है, and I think ये जीवन को हिलाने वाली आपने आज हमें guidance दी है सबको. And every time I listen to you, there are 1,000 things which I learn and take away. Now I believe, I think all of us realize that Swachhata is much beyond our immediate surroundings and what we literally and figuratively aim for. Or I think we can only clap and convey our regards for a fabulous, moving discussion. Thank you so much. Thank you. And with your permission, हमारे यहाँ चैट में भी लोगों ने लिखा है कि क्या हम ये आपका रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं, तो if you permit, we will put it on our YouTube official YouTube channel of NABH, and जिससे मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें. और फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में we would love to have you with us for maybe a larger forum, face-to-face discussion
and a question and answer session. Mohit. पूरी टॉक सुन लिया, बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसको कर सकते हैं, आप एंजॉय करें, लेकिन ध्यान रखिए कि परिवर्तन स्वयं में करें, और आप अगर ये चीजें करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, और आज से नहीं, अभी से ही हमको परिवर्तन करना है. एंजॉय योर लाइफ, सेलिब्रेट योर लाइफ. थैंक यू. ओम शांति. थैंक यू डॉक्टर अतुल. Always a pleasure to be with you, and thank you for this opportunity. Thank you. Thank you, Mohit. Thank you. Grateful to your for sparing your time. Thank you so much. Thank you all. Good evening. Yeah, thank you, Over to Mohit you. sir. Thank you, coacher sir. Yeah, thanks a lot. सभी लोगों को मतलब अलग ही आनंदित हुए इस प्रेजेंटेशन से. 2 दिन से हम लोग बस 5S एंड जो ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए क्लीननेस के लिए सोच रहे थे, लेकिन अभी जो आखिरी में जो होता है वो हमेशा बेस्ट ही होता है. तो अलग ही लेवल का क्लीननेस था ये, और सबके लिए ज़रूरी है, जो कि कहते हैं कि मेडिसिन हमें कोई खुशी नहीं देती, खुशी ही मेडिसिन है. तो उसी को आप लोग अप्लाई करें, और बाकी बस यही है अभी स्वच्छता पखवाड़ा में QCI की तरफ से. Thank you so much. We'll definitely share the link. We'll upload this presentation on our YouTube link, and then we'll share the link with all the participants. So now it's time for group photograph. Yes, sir has left, I guess. So, although I have taken the photograph, but still I'm taking. Thank you so much. Bye for now. That's all from Quality Concept India.